This conference will now be recorded. तो सिंपल सा गाइस, आई एम गेटिंग द फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक स्टोरेज अकाउंट बनाया यहाँ पर and I'm give the name of this storage account name is like ICCP storage. और इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर आई एम गेटिंग द फाइल शेयर स्टोरेज और मैं चाहता हूं कि इस फाइल शेयर स्टोरेज को मैप करूं मैप विद Azure VM और दूसरा है मैप विद ऑन प्रोमाइस. गॉट इट द पॉइंट वीरेंद्र परवीन फर्स्ट लॉजिक. Yes, sir. पहली लेवल हम ये करते हैं सेकंड इसके बाद बताएंगे. So I'm just logging with portal and I create a storage account. So I'm just click on sign in and log in with portal. And I'm just click on create a one resource group. So I think so there one resource group is created or maybe it's not available. So there is a no resources and a resource group. There is a no resource. One resource group is available with the name of ICCP Agent East US. So I'm just click home and then click on storage account. First of all, I'm create the storage account and just click and click on storage account. So where is storage accounts and create storage accounts, and I'm just give the storage account name is like the pay as you go subscription, and ICCP-SG is a security group. Storage account name like ICCP hyphen STORAGE storage. So that can be field contain only lowercase. So is it ICCP and yeah. The ICCP storage or I'm using like East US or either your choice Central US. So I'm select the Central US या East US anywhere standard. Geo redundant ले रहे हैं guys. Next like nothing to do, कुछ नहीं कर रहे हम यहाँ पे. Next all public endpoints and review and create. So guys I'm creating two storage account. मैं यहाँ पे two storage account बना रहा हूँ अभी. Why? अभी मैं आपको बता दूंगा. तो this is my storage account. या एक ही रहने देता हूँ, वन बाय वन ही चलता हूँ. आई एम क्रिएटिंग जब तक मेरी स्टोरेज अकाउंट बन रहा है, आई एम क्रिएटिंग द वन नेटवर्क. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन virtual networks and create and like VNet 1, is it Central US and next give the IP of like ये ले लेते हैं guys, default IP ही ले रहे हैं and review and create, and I'm creating the one virtual machines. So after creating this network, I'm create the virtual machines क्योंकि we have connect the virtual machine with this particular VNet. So I'm just click on home and then click on virtual machines. Virtual machines and create virtual machine. Give the edge pay as you go and resource groups like the existing resource group like a name is called like VM1 and we don't require not infrastructure Reddit. I'm just using the Windows Server 2012, 1 GB RAM, 1 CPU,
ICCP and the password is AST@1234568. And RDP, next, then next, and we need a सर default preview सर्वर and create. 2012 का इशू तो नहीं आएगा? नहीं कोई इशू नहीं आएगा, स्टोरेज अकाउंट में कोई इशू नहीं आएगा। .NET वाला कुछ हो रहा था ना सर, वो Error. अलग चीज है, वो अलग था, डोंट वरी। सो गाइस यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन भी हमने क्रिएट कर ली अपनी। And this is my physical machines. So this is my physical machine, guys. Or my physical machine, inside the physical machine you can see there is a how many drives. There are only 2 drives is available. C and D drive is available, and I'm just click on Azure Explorer, my Microsoft Azure Storage Explorer. I'm using this one. This install in my physical machine. So guys, ये मेरी physical machine पे installed है। तो जब तक ये open होता है, I'm just again go to the portal. So you can see guys कि मेरी virtual machine यहाँ पे deploy हो रही है। अब हम back to storage accounts, और inside the storage accounts as per the diagram create the file share storage and set the limit कि हम कितना space cloud का use करना चाहते हैं। So click on storage account and select the subscription. Is it pay as you go? So this is my ICCP storage, and then click, or inside the click I'm just create a one storage with the name of file share. So I'm just click on file share, and give the name of the file share name, like I'm just give the name of file share is like INDIA India. So the file share name can contain only lowercase India data. And hot and cool, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ गाइस। हॉट एंड कूल का मतलब क्या है कि हॉट का मतलब है हॉट डेटा आप रखना चाहते हो जो जनरल है, सो हम हॉट कर देते हैं। एंड लिमिट्स, सो इट गिव मी द 5 TB ऑफ लिमिट। तो 5 TB मैक्सिमम कैपेसिटी इज 5 TB, फाइन। तो कूल भी ले सकते हो, तो कूल भी आप ले सकते हो, चॉइस इज यूर। तो आई एम जस्ट क्लिक या एंड क्रिएट। सर मेरा एक क्वेरी है, ये जो साइज है, ये प्री डिफाइंड आएगा या हम लोग चूज कर सकते हैं? 5 TB के हमें देखिए मैं कहीं यहाँ पे जरूरत नहीं डिलीट है। कर देता हूँ इसको, मैं आपको यहाँ पे एक मिनट डिलीट कर देता हूँ। वेट एक मिनट, मैं आपको बता देता हूँ। डिलीट द एनेबल द फाइल शेयर, दैट्स INDIA इंडिया DA डेटा, एंड देन ओके। यहाँ पे जब आप फाइल शेयर बनाते हो ना, तो यहाँ पे लिखा है द एक्टिव, आपका जस्ट क्लिक ऑन फाइल शेयर। यहाँ पे ऑप्शंस आता था कि आप कितना स्पेस यहाँ पर यूटिलाइज करना चाहते हो। तो पहले यहाँ पे ऑप्शन आता था, अब यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी 5 TB आ गई है, ठीक है ना। सो यू कैन इम्प्रूव। सो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस एडिटिंग का आएगा। जस्ट आई एम क्लिक ऑन हॉट एंड देन क्लिक with the name of INDIA India data। तो ये कंसोल चेंज हुआ है, पहले यहाँ पे मैनुअली आता था कि आप क्या। तो 5 TB का मतलब है कि पहले भी हमारा जो है 5 TB जैसे उसमें आता था विंडोज में, सॉरी AWS पे। तो इसी तरीके से सेम यहाँ पे क्रिएट। तो दिस इज अ स्टोरेज अकाउंट जो मेरा एक क्रिएट हो गया है, लाइक दिस अ फाइल शेयर स्टोरेज मेरा क्रिएट हो गया है। और आई एम जस्ट क्लिक ऑन इनसाइड द फाइल शेयर,
और जो भी डेटा अपलोड वगैरह करना है आप यहाँ से कर सकते हो, या एडिट कोटा। तो यहाँ पे 5 TB है और यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ 5 GB। गॉट इन माई पॉइंट? Now got इज it, इट sir. क्लियर? एंड Clear, देन clear. क्लिक ऑन ICCP स्टोरेज। तो ये अब मेरा 5 TB की जगह क्या हो गया, 5 GB। तो ये जो एडिट वाला ऑप्शन है ना, ये अभी आया है, दिस रिसेंटली विद इन अ वीक। ओके, तो यहाँ पर गाइस Okay. मैंने एक फाइल शेयर बना लिया विद द नेम ऑफ इंडिया डेटा। अब मैं इस फाइल शेयर को कनेक्ट करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं डायरेक्ट कोई भी यहाँ पे आके और यहाँ पे आके मेरा डेटा अपलोड करे। मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा C ड्राइव D ड्राइव आ रहा है ना, उसी तरीके से मेरे पास एक क्लाउड की स्टोरेज की ड्राइव आ जाए। तो उसके लिए गाइस मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट लॉग इन विद द वर्चुअल मशीन, आई एम जस्ट सर क्लिक एक ऑन होम। क्वेश्चन था सर वहाँ पे। हेलो हाँ बताइए। सर, स्टोरेज में दोबारा जाइए ना सर, वहाँ पे क्वेश्चन है कि सॉफ्ट डिलीट विद इन 7 डेज, तो क्या मतलब उसका? 7 दिन का डाटा बढ़ा देगा वो? हाँ, सर उसको हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी होगी, अगर चेंज करना है तो हमें? लाइफ साइकिल, अभी लाइफ साइकिल बताऊंगा, अभी आगे लाइफ साइकिल बताऊंगा। अच्छा, अभी मैं लाइफ साइकिल बनाऊंगा। आप क्या काम करना चाहते हो वो लाइफ साइकिल अब आगे बताऊंगा। अब आपने पूछा है तो यहाँ पे बता भी देंगे, आज ही कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो VM1 मैंने यहाँ पे क्लिक करा और आई एम जस्ट लॉग इन विद दिस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन, देन क्लिक ऑन कनेक्ट। एंड यस। सो गाइस अब मैं क्या करना चाहता हूं, अपनी ड्राइव को मैप्ड करना चाहता हूं। सो किस तरीके से हम मैप करेंगे कि आई एम जस्ट क्लिक एंड जस्ट ओपन द स्टोरेज अकाउंट एंड यहाँ पर मेरा ये स्टोरेज है, अजूर स्टोरेज। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट। सबसे पहले मैं अपने स्टोरेज अकाउंट को कनेक्ट करता हूं, स्टोरेज अकाउंट सर्विसेज and account name and key. So click on account name and key, and then name and key के बाद I'm just click on my storage account, and this is my storage name is called ICCP storage. So display name like ICCP, account name is ICCP storage, and key. So key just I'm click on, and there's a key is available, is continuously change. So you can put the any key. So choice is your key, and then click and then paste, then next and connect. तो guys कनेक्ट होने के बाद यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने ICCP की नेम डाला, सो यहाँ पर मेरा फाइल शेयर ऑलरेडी आ रहा होगा एक, जो मैंने बनाया था विद द नेम ऑफ इंडिया। गॉट इट द पॉइंट? और मैं जब यहाँ पे इस इंडिया वाले पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट टू VM। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? कनेक्ट टू VM पे क्लिक करा, गिव मी द URL, आई एम जस्ट कॉपी दिस URL, just copy and go to VM. So this is my virtual machines, and inside the virtual machine you can check the only the two drives is available for this machines. One is temporary D drive and C drive. So I'm just open the command prompt and paste this URL or edit this URL like use a drive later. So यहाँ पे use a drive later आ रहा है, so मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, get ड्राइव लेटर की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ
use like r colon, like मैं चाहता हूं कि r के नाम से मेरे पास आए, and then enter. So the use is not recognized as the internal or external command. So I'm just type क्या कमांड थी यार, वेट, I'm paste again, and net use or drive later is called r colon. Yeah. So guys, net user r colon. तो मैंने यहाँ पे जब r colon करा तो यू कैन सी कि मेरे पास एक ड्राइव बन के आ गई होगी विद द नेम ऑफ, गॉट इट, इज इट क्लियर एवरीवन? और अब मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ, लाइक फोल्डर पे गया, लाइक वरिंदर डेटा एंड लाइक प्रवीण डेटा. तो गाइस ये जो डेटा है मेरा सेव कहाँ पे हो रहा है? दिस डेटा इज एंटायर सेव इन माय, लाइक अगर आप इस फिजिकल मशीन पे भी अगर आप इसको शेयर करना चाहते हो तो जस्ट गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट एंड पेस्ट and give the name of like r colon. So if it's not connect this process, so I'm just using the another process. थोड़ा लॉन्ग टाइम. इज इट क्लियर गाइस? और अगर आप देखना चाहते हो कि आपका जो ये डेटा है कहां पर स्टोर हो रहा है, so you can see the file share, or inside the file share you can see India data, or inside the India data you can see Praveen data and Virender data. Got it? How to mount storage? तो ये तो समझ में आ गया सर, लेकिन ये क्या हमें मैनुअली हर VM के अंदर जा करके कमांड चलाना पड़ता है तब जाके ये ड्राइव आएगा? बिल्कुल. या फिर आप स्क्रिप्ट, या आप स्क्रिप्ट रन कर दीजिए. कोई भी VM बनाएंगे तो स्क्रिप्ट रन करनी पड़ेगी. यही जो स्क्रिप्ट मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. दूसरा क्या है गाइस यहाँ पर, मैंने सर VM के अंदर जाना पड़ रहा है हमें करने के लिए. हमें 100 VM है तो हमें 100 VM के अंदर जाके हमें करना पड़ेगा. हाँ यार, हर VM पे जाके फर्स्ट टाइम तो माउंट करोगे, फर्स्ट टाइम तो सेटिंग दोगे ही ना, सारी सेटिंग्स तो फर्स्ट टाइम दोगे आप. सर इसको हम सीधा डायरेक्ट VM पे एक्सेस नहीं दे सकते कि हमें अंदर जाना ना पड़े VM की, ऑटोमेटिक डिस्क अटैच हो जाए उसके अंदर? स्क्रिप्टिंग के थ्रू आप कर सकते हो. तो गाइस देखिए यहाँ पे एक और है कि अगर आप इसको कनेक्ट भी करना चाहते हो स्टोरेज अकाउंट को, तो अगर आप इस स्टोरेज अकाउंट को कनेक्ट करना चाहते हो तो यू कैन जस्ट कॉपी. बहुत बड़ी स्क्रिप्ट आई है तो किस चीज की है? विंडोज स्टोरेज अकाउंट, लिनक्स, मैक. वाओ. एक ये भी यूआरएल, आप यहाँ से भी इस यूआरएल को जाइए और पावर सेल के अंदर पेस्ट कर दीजिए, तो तब भी ये आपका क्या करेगा, उस नेटवर्क को आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सर देगा. मेरी एक क्वेरी है. जैसे कि जितने भी VMs होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के यूजर्स होंगे, तो इसमें सर सिक्योरिटी कहीं हम लगाना चाहें तो कैसे लगेगी? ऐसे तो सब लोग डेटा अपना विजिबल जो भी यार शेयर. हर किसी को अलग अलग देंगे ना यार. हम तो, मैं तो एक कॉमन वो दे रहा हूँ, आप कॉमन थोड़ी ना दोगे. ये एक तरीके से शेयर ड्राइव बनाई है मैंने, आप चाहो तो अलग अलग दो. नहीं समझे? ओके. हाँ हाँ समझ गया. अलग अलग यानी कि
अलग अलग शेयर हाँ ड्राइव तो अलग बनानी अलग पड़ेगी। दोगे ना यार, बिल्कुल अलग अलग शेयर ड्राइव बनाओ यहाँ पर। हम्म। इसमें क्या सर सिक्योरिटी भी अलग से इम्प्लीमेंट हो सकती है कि ऐसे ही यही प्रोसेस है? यही प्रोसेस है, बाकी यूजर्स को हम राइट्स देंगे। अब इसके बाद का मैं ऑप्शंस आपको बताता हूँ क्या होगा। ये चल रहा है, इसको चलने देते हैं हम गाइस। या सो कुछ स्क्रिप्ट के अंदर पंगा है, एक तो मेरे यहाँ पे ना फायरवॉल लगा हुआ है, अब फायरवॉल के चक्कर में ना पंगा ही होता है। तो फेल, दोबारा से वो कनेक्ट कर रहा है। एनीवेज, सेकेंडली वीएम के साथ कैसे। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टास्क मैं आपको बताना जा रहा हूँ, इस लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है कि देखिए, जब भी आप हॉट डेटा है तो आप डेटा का क्या करना चाहते हो, यानी कि आपका डेटा तो यहाँ पे सेव हो रहा है, बट आप कुछ सेटिंग्स देना चाहते हो कि आपका डेटा कब डिलीट हो या क्या हो जाए उसके साथ, ठीक है ना, क्या काम करना चाहिए। सो इस टाइप की आप सेटिंग्स देना चाहते हो, तो वी हैव जस्ट क्रिएट द लाइफ साइकिल। I'm just click on storage account and click on ICCP storage, and inside the ICCP storage you can see कि मेरा आ रहा है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एंड एड अ रूल, और रूल नेम यहाँ पे आप जो भी रूल नेम देना चाहते हो, लाइक का RULE रूल 1 मैंने दे दिया, और इस रूल टू ऑल स्टोरेज अकाउंट, तो मैंने कह दिया ऑल स्टोरेज अकाउंट्स पे आप कर दीजिए, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट, अब वो पूछा है क्या करना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे दे दिया नंबर ऑफ डेज 90, या मैं कहता हूँ 100 डेज, और क्या हो जाए, मेरा जो स्टोरेज है वो डिलीट हो जाए, या मूव टू कूल स्टोरेज, या मूव टू आर्काइव स्टोरेज। तो ये यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि ऑटोमेटिकली आप क्या प्रिविजन सेट करना चाहते हो। सो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट यूज रूल टू ऑटोमेटिकली मूव ब्लब टू कूलर टायर और द डिलीट देम। इफ यू क्रिएट द मल्टीपल रूल, द एसोसिएट एक्शन मस्ट बी इंप्लीमेंट इन देयर ऑर्डर। लाइक हॉट के अंदर आप क्या, आपका डेटा हॉट के अंदर पड़ा रहेगा, आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि ये मेरा डेटा कुछ टाइम के लिए हॉट के अंदर रहे और उसके बाद ऑटोमेटिकली कहां पे चला जाए, कूल स्टोरेज में चला जाए। तो लाइक मैं यहाँ पे कूल स्टोरेज कर दूंगा, मूव टू कूल स्टोरेज एंड देन ऐड। तो ये ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, रूल कूल टू हॉट हो जाएगा, बट कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद, जो भी टाइम ड्यूरेशन मैंने वहां पर सेट करा है। तो ये आप लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कर सकते हो कि आपके डेटा क्या क्या है। आप चाहते हो कि आपका कोई डेटा है 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए आप रखना चाहते हो स्टोरेज में, ठीक है ना। तो अगर आप 1 मंथ के लिए अपने स्टोरेज में रखना चाहते हो, बट आप कहते हो कि आपको नहीं पता, आपका ध्यान नहीं रहता, वहां पे लाइफ साइकिल कंडीशन डाल सकते हो कि आफ्टर 1 मंथ के बाद या तो ये मूव हो जाए कहीं दूसरे में, या फिर क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली मेरा डिलीट हो जाए। गॉट इट द लाइफ साइकिल मैनेजमेंट गाइस? इज इट क्लियर गाइस? हेलो, क्लियर सर, क्लियर। आई एम डिसेबल इट एंड आई एम डिलीट इट, क्योंकि PSU को है, एज वेल एज मैं अपना फाइल शेयर भी डिलीट कर रहा हूँ गाइस। उसके बाद मैं आपको अनदर चीज पे लेके जा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का पार्ट अब हम पढ़ने वाले हैं, ये स्टोरेज कैसे बनाते हैं, कैसे मैप्ड होता है। सो वेयर इज माय फाइल शेयर, एंड आई एम डिलीट दिस फाइल शेयर।
एंड गाइस अब आता है कि नेक्स्ट आता है हमारा रेप्लिकेशन। अब आता है रेप्लिकेशन। तो Azure स्टोरेज रेप्लिकेशन। तो Azure स्टोरेज रेप्लिकेशन की अगर मैं बात करता हूं गाइस, तो यहाँ पर देयर द टू टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसेस है हमारे पास। वन इज जियो, geo replication, it is a one kind of failover. Got it the meaning of failover? और सेकंड है ऑब्जेक्ट। तो आप एट ए वन टाइम कोई एक ही रेप्लिकेशन कर सकते हो। So that means कि suppose I am getting the two storages. I am getting the one storage and this is storage called the name of ICCP storage, and I'm getting the one more storage and this is called the ICCP backup, और मैं ऑब्जेक्ट स्टोरेज का मतलब है कि गाइस आई एम getting the container inside the storage. Suppose this is my container 1 and this is my container 2. Container 1 and container 2, and I'm enable the replication between both containers. Okay, I'm asking ki when anyone can upload the container data in container 1, that it this container 1 copy is created in a container 2. Got it the point guys? Why we have enabled the replication? Guys, got it the my point? कि मैं चाहता हूं कि अगर इसके Got अंदर it, मेरा sir. कोई Got भी it. AHD डेटा आता है, this AHD data is auto replicate in another container. So primary और secondary कौन सा बनाना है वो आपको देखना है। Okay, so this data is automatically replicated. Like कि further अगर मेरा data loss होता है तो we can recover to the another container. Virender, is it clear? Clear, sir, clear. So how to configure? So I'm already get the one storage guys. I'm getting the one more storage. Or in this storage I'm get the one container with the name of container name is like container 1. So give the and select the public access and then create. So guys यहाँ पे container 1 बना लिया है ICCP storage. I'm create the one more storage guys. Create. And I am give the name of this particular storage name is I'm just put the name of this storage is called a ICCP BACKUP backup STORAGE storage. Got it the point guys? Standard geo redundant ले रहा हूं next all networks review and create. And the data replicate after enable the replications. अगर आपने before replication कोई data बनाया है तो वो replicate नहीं होगा।
So is it deploy in progress? And I'm enable the application. So you can go to any storage, but I'm just click and all subscription, then apply. So you can see here the both storage. Where is my another storage? Hello. Yeah. So I'm just click on ICCP storage, or inside the ICCP storage, you can go the geo application and object application. So I'm just click on the object applications, set up the application rules. Pay as you go destination storage name. So I'm just create the ICCP backup is my destination. Source container, the source container is container one. Destination container, maybe the multiple container is available. So no, because I'm not getting the any container to the another bucket. So I'm just right click on this storage account, open link in new tab, and I'm just click on storage account बनाया guys हमने storage container नहीं बनाया था, so I'm just click the another container. So I'm just click on backup and click on container and click container, give the container name is container container 2 and public anonymous and create. So guys ये container 2 बना दिया. So in I'm enable the application, so we have select the container 2. So just refresh. दोबारा से मेरे को बनाने पड़ेगा application. So I'm just ICCP storage, then set up a rule, pay as you go, select the destination is ICCP backup storage, select the source container, select the destination container, and save and apply. So he can ready in within a minute. Then if I upload the data, अब मैं अगर यहाँ पे कोई भी data upload करता हूँ, any data, for like ICCP storage one. So like I'm just go to the blub container, and this is my container one, and I'm upload the data. I'm upload a one file. Browse and click on desktop with the Azure nodes and upload. एंड गाइस देखिए मेरी यहाँ पे ये फाइल अपलोड हो चुकी है और वी कैन सी इन कंटेनर वन. आई एम जस्ट गो टू, मैंने ऑन प्रेमाइज से अपलोड करी है इन कंटेनर वन के अंदर. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन storage account and click on container and then check the inside the container one. You can see the one file is available with the name of Azure nodes. If I'm check, this file also comes automatically in my another storage. Yes or no guys? यही होना चाहिए ना guys? वीरेंद्र आउटपुट यही आना चाहिए. परवीन यही आएगा सर, रिजल्ट यही आएगा. चलो आना चाहिए तो अच्छी बात है यार, बट नहीं आया यार. तो जस्ट वेट 1 or 2 minutes, just wait. So थोड़ा सा टाइम लगता है. अरे भाई आजा.
Also both logic is clear. Geo application is one kind of failover. So if you enable the Geo application, you can just remove the other applications. आप एक बार में एक ही एप्लीकेशन कर सकते हो. पहले जो मैंने करी थी वो ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन थी. अब मैं आपको जो करूंगा जियो एप्लीकेशन. But in that case, if I'm enable the Geo application, I'm just remove the object applications. अगर आप नहीं करोगे तो आपको automatically error भी दे देगा. So I'm just click on home and click on storage account and go to ICP backup. अरे भाई आजा तो move into another. Yeah, got it the point. Is it clear, guys? अरे Clear, तो दे दो clear, मेरे sir. भाई. And I am just moved to another the ICCP storage accounts and I'm just click on this and I'm just click on object View the applications. application. Delete करने से पहले मैं डायरेक्ट पहले बना लेता हूँ. So I'm just click on Geo applications and the Azure storage. So ये secondary कहाँ पर बनाएगा? East US के अंदर बनाएगा. Central US में हूँ तो automatically East US में ये क्या करेगा? Backup इसका प्लान करेगा. So Azure storage application copies your data so that is a protect for the transit hardware failure, network or power outage and nature disaster. If an outage, so I'm prepared for failover and just put the yes and then failover. So you give me the error. क्या दे रहा है error दे रहा? Performing account failure, your account failure is not supported for account. चलिए यार. Anyways हम क्या करते हैं? Object applications को जाके delete कर देते हैं पहले. Just delete rule. And after delete this rule, I'm just try again. So just click on Geo applications, preparing for Azure, then yes, and then click failover. So you give me the 5 to 10 minutes, guys. ये क्या लेगा? 5 to 10 minutes लेगा ही लेगा यहाँ पर. Is it clear? All parts of the storage accounts, applications, lifecycle management, file share, containers, object applications, Geo applications, Azure File Explorer, sorry, Azure Explorer. Vrinder, is it clear, guys? Clear, sir. Sir, data protection में क्या आता है? Nothing sealed वगैरह आता है आपका. यहाँ पे जो भी डेटा प्रोटेक्शन में आपका आता है इनेबल, आप जो किस स्टेप्स का लेना चाहते हो, बैकअप लेना चाहते हो, इनेबल सॉफ्ट डिलीट 7 डेज लिखा हुआ है. सॉफ्ट डिलीट का मतलब है अपने आप 7 दिन. मतलब कि सॉफ्ट डिलीट का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आपने अपना डेटा डिलीट करा तो डिलीट करने के बाद भी वो डिलीट नहीं होगा. जैसे एक तरीके से रिसाइकल बिन में जाके सेव हो जाता है ना, इस तरीके से जाके वो आपका सेव हो जाएगा. तो आप वहां से रिकवर करते हैं. तो जो परमानेंट डिलीट होगा वो आफ्टर 7 डेज होगा. सेम एज कंटेनर है. सेम एज कंटेनर है. गॉट इट? एक होता है सॉफ्ट डिलीट, एक होता है हार्ड डिलीट. लाइक मैं इसको डिलीट भी करूंगा तो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो इमीडिएटली डिलीट हो जाए तो आपको यहाँ से इसको अनचेक करना पड़ेगा. So just check in Geo applications. So is it deployed, guys? Abhi is it running? And click on storage account. So anything else, guys? Hope so कि आज की लैब आपको प्रॉपर
पॉइंट टू पॉइंट मैं लेके चला हूँ, तो सारी चीजें मैंने जो पुरानी थी वो भी अभी दोबारा कवर कर दी हैं। लास्ट टाइम फाइल एक्सप्लोरर ही करा था हमने, बट आज हमने फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू डेटा अपलोड करा है, फाइल्स भी मैप करी हैं, कंटेनर्स भी हैं, एप्लीकेशंस भी इनेबल करा है, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी करा है। इज इट क्लियर गाइस? सो बट गाइस एक चीज ध्यान रखना, 5 TB स्पेस मत लेना, क्योंकि PSU को अकाउंट में यूज कर रहा हूँ, सो बिल बनेगा। सो मैं देखा भी देता हूँ कि अभी तक कितना बिल हमारा बन चुका है। सब्सक्रिप्शंस, सो चेक इट। मुझे भी नहीं पता, ज्यादा नहीं बना 97। सो अभी तक हम जब से पढ़ रहे हैं 97 रुपीज ही बना है। सो नो मच बिल, क्योंकि वैसे भी हम रिसोर्सेज बनाते हैं, मैं तुरंत इमीडिएटली डिलीट कर देता हूँ। तो बिलिंग मैनेजमेंट काफी ज्यादा जरूरी है गाइस। अगर आप बिलिंग मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपके चार्जेस बहुत ज्यादा लगेंगे। तो गाइस जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ एंड रिकॉर्डिंग भी ऑफ। 5 मिनट्स के बाद हम देखते हैं हमारा ये। This conference will now be recorded. तो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस कंप्लीट हमारा हो चुका है, फेल ओवर द सक्सेसफुली एंड चेक कि आई एम जस्ट क्लिक ऑन होम एंड देन क्लिक ऑन ICCP स्टोरेज अकाउंट and click on home and click on a storage account. तो गाइस यहाँ पे दो स्टोरेजेस है मेरे, एक इज ICCP स्टोरेज, सो आई एम जस्ट डिलीट दिस स्टोरेज जो कि मेरा बैकअप था, and another one is I'm just click on inside the ICCP storage. I'm already enabled the replication. I'm already enabled the geo replication. So inside the geo applications you can put कि इसने हमारा replications primary locations यहाँ पे show हो रहा है। So geo application available for the ground redundant GRS and read access geography resident storage account. Update your application type under the configuration to use setting. So view all storages. तो ये हमारे सारे स्टोरेजेस आ रहे हैं जो हमने बनाए हुए हैं, तो ये उनका URL है। सो LLS और प्राइमरी आ रहा है, जस्ट क्लिक। सो ये हमारा यहाँ पे गाइस बन चुका है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं अपना, अब कोई डेटा अगर हम बात करते हैं लाइक कंटेनर, डिलीट होता है मेरा, बट दिस इज अ वन काइंड ऑफ फेल ओवर। फेल ओवर का मतलब है कि अगर मेरा स्टोरेज डिलीट होता है, तो इनसाइड द स्टोरेज तो डिलीट नहीं हुआ, बट हमारा कंटेनर डिलीट हुआ है। ये क्या लोकल रेडिडेंट बना दिया था क्या? मैंने जियो नहीं लिया था क्या? Where is configuration? तो गाइस देखिए यहाँ पे मेरी दोनों आ गई, एक प्राइमरी सेंट्रल यूएस में और दूसरी उसकी एप्लीकेशन कॉपी वो कहाँ पे बना रहा है, मेरी सेंट्रल यूएस में बना रहा है।
गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? तो वो दोनों जियो रेडिडेंट होना चाहिए था, मैंने क्या करा था, एक को जियो पे डाल दिया तो एक का लोकल हो गया था, तो इस वजह से वो आपकी रेप्लिकेशन कॉपी नहीं दिखा रहा था. So failover cannot be initialized because the data synchronization for the primary secondary region is in progress. Failover will be available when synchronization is complete. Got it the point, guys? So like I'm just click on content container. Where is where? अरे भाई की तो container, and I'm just click on create container. Hello. And create, and then I'm upload the data inside the container. Is it clear, guys? Failover के लिए है ये आपका. बारह बज के 11 मिनट पे फेल ओवर हुआ था, जो हमने कंटेनर डिलीट करा था. तो फेल ओवर कैन नॉट बी Azure स्टोरेज एप्लीकेशन कॉपीज योर डेटा सो दैट इज प्रोटेक्ट फॉर द ट्रांजिट. So failover cannot be initialized. The enable the synchronization. Failover you will available when the synchronization complete and click for more information. Is it clear, guys? कर लोगे? प्राइमरी और सेकेंडरी लोकेशन हमारी बन चुकी है. ऑटोमेटिकली फेलोवर इसने क्रिएट कर दिया है इसका. गाइस क्लियर है यार? रिप्लाई तो दे दो भाइयों. सर चलिए इस सेशन का ओवर करते हैं. लिंक, इस सेशन का लिंक भी शेयर कर दीजिएगा सर. This conference will now be recorded.